हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 2.6 दैट इज मनी, ये पोएम का वन शॉट। इसके पहले हमने 2.1 से लेके 2.5 तक सारे वन शॉट्स देखे हैं एंड होप ऑल दीज वन शॉट्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही बढ़िया पोएम है 2.6 दैट इज मनी। फ्रेंड्स, मनी एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का जो एवरीवन वांट्स टू हैव इट। तो व्हाट पोएट थिंक्स अबाउट मनी, लेट्स स्टार्ट। द पोएम इज रिटन बाय विलियम एच डेविस. He is a Welsh poet and a writer also. He has spent most of his time as a tramp or hobo in UK and United Kingdom, and then he became a peddler and street singer in England. So the initial life of poet has very difficult because he spent most of his time as a peddler and street singer because of his poor condition. And after several years of wandering life, he published his first volume, that is The Soul's Destroyer and Other Poems. तो ये नाम हमें अच्छे से याद रखना है। एप्रिसिएशन अगर इस पोएम का आता है तो 100% ये हमें लिखना है वहाँ पे। दैट इज द पोएम मनी इज रिटन बाय विलियम एच डेविस, अ वेल्श पोएट. He spent most of his time as a peddler and street singer. After many years, he published his first volume, that is The Soul's Destroyer and Other Poems. Now let's talk about this poem. बात करते हैं ये पोएम का. The poem Money tells us about the rich man who wants to be a poor man to find the real happiness. Now this is maybe the theme of this poem, that is happiness and true friends are some of the major themes of this poem. So according to poet, if we want to be happy, we must be poor, because he thinks that real joy, real happiness is in not in money, it is in friends and our relatives. तो स्टार्ट करते हैं. देन इट इज़ व्हेन वी डू नॉट हैव मनी और हैव लॉस्ट मनी we realize how important the money is. At the end, the poet says that now he does not have money, he has true friends, though very few. So start करते हैं the poem Money, which having only 5 stanzas and it has a specific rhyme scheme, that is A, B, C, B, and to make it very beautiful and impressive, poet has used so many figures of speeches such as antithesis, then alliteration, repetition is very common, then apostrophe is there, then simile, so many figures of speech are here. Let's start the poem line to line explanation. First stanza: when I had money, money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. So in the first stanza, the poet tells about when he was very rich. At present he is poor, but he tells about his past. When he was a rich person, then many people as a false friend, he called his friend of those time as a false. तो उस ज़माने के उनके जो दोस्त थे वो सारे फॉल्स फ्रेंड कहा गया है, अनट्रू फ्रेंड्स कहा गया है, रियल फ्रेंड्स नहीं थे, बिकॉज एक्चुअली दे यूज्ड टू कम टू मीट हिम नॉट फॉर द राइटर हिमसेल्फ बट फॉर एंजॉयमेंट ऑन हिज वेल्थ. तो उनका जो पैसा था उस पैसों से एंजॉय करने के लिए वो उसके पास आते थे. सो ही सेज दैट व्हेन आई वाज वेरी रिच I did not know what is joy, but when I became poor, I understood what is the real joy. When he was very rich, many friends used to come to his home, and all the friends he called as false friend and untrue friends came knocking all the day at my door. So when he was very rich, he had many friends, but none of them was a real friend. And we know friends
क्या होते हैं, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इंडीड। तो उस टाइप के उनके कोई भी फ्रेंड नहीं थे। चलो देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। सो यू फाइंड द फर्स्ट लाइन, मनी मनी इज रिपीटेड। सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज, सॉरी, repetition. The first figure of speech is repetition. Then you find the sign that is exclamation. So यहाँ पे exclamation भी use किया गया है and oh, so here the inanimate object money is address. So again यहाँ पे एक figure of speech है that is apostrophe. So in the first line we find three figure of speech and of course M sound is repeated. So again there is alliteration. So alliteration, the consonant sound M is repeated. For repetition, the word money is repeated for greater emphasis. Apostrophe, non-living object that is money is addressed. And exclamation, an exclamatory sentence is used instead of assertive sentence. तो उसका explanation इस तरीके से लिखना होता है. Second sentence, I knew no joy till I went poor. Second, there is only no new, the consonant sound is there, though the letter starts with different, but the sound is similar. So again यहाँ पे alliteration है. For many a false man as a friend came knocking all the day at my door. So here it little bit hyperbole, came all day knocking my door. तो दिन भर दोस्त आते थे, नॉक करना यानी कि दरवाज़ा खटखटाना. तो हम देखते हैं कि जितने भी सेल्फिश फ्रेंड्स होते हैं, अनट्रू फ्रेंड्स होते हैं, जब तक जेब में पैसा है तब तक सब पूछते हैं कैसा है, लेकिन एक बार पैसा नहीं होता है देन वी कम टू नो द रियल फ्रेंड्स क्या होते हैं. तो राइटर को भी कुछ इसी तरीके से एक्सपीरियंस आता है कि व्हेन ही वाज वेरी रिच ही हैड मेनी फ्रेंड्स बट नन ऑफ देम वाज अ ट्रू फ्रेंड्स. नेक्स्ट स्टैंजा, then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead. I dare not speak to let this false world know. So he says that when he was very rich and he did not know what is happiness, but when he became poor he realized and he felt the joy of happiness. So he says that now his condition is like means he compares himself with a small boy, a child who having a trumpet in his hand, but he was told not to blow it. Trumpet, what is trumpet? Trumpet is a musical instrument. Trumpet क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. कुछ इस तरीके से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा. सो ट्रम्पेट इज अ इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. सो दैट ही मस्ट नॉट ब्लो बिकॉज अ मैन इज डेड. सो व्हेन देयर इज सच अ सॉरो एक्सपीरियंस, सो वी कैन नॉट ब्लो सच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना. तो ये अच्छा नहीं होता है कि जब भी हम किसी सैड मोमेंट पे ट्रम्पेट बजाते हैं या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, है ना. तो पोएट का भी फिलहाल हाल इसी तरीके से है. वो कंपेयर करते हैं खुद को कि आई हैव गॉट हैप्पीनेस बट आई कैनॉट एक्सप्रेस दिस हैप्पीनेस टू दिस फॉल्स वर्ल्ड. ये जो झूठी दुनिया है, ये झूठी दुनिया को यानी कि द फ्रेंड्स विच आर विथ हिम, तो उनको मैं ये नहीं बता सकता कि आई हैव गॉट द रियल ट्रेजर, दैट इज़ हैप्पीनेस, दैट इज़ रियल फ्रेंड्स, लेकिन ये दूसरों को नहीं बता सकता. सो ही कंपेयर्ड हिज कंडीशन विथ अ चाइल्ड हु हैविंग अ ट्रम्पेट बट कैनॉट ब्लो इट ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रीफ. आई डेयर्ड नॉट टू स्पीक to let this false world know. So he also thinks that I am not going to tell all my friends this world that I have found the real treasure, that is happiness, means friends.
तो इस स्टैंजा में वो अपनी खुद को कंपेयर करते हैं एक चाइल्ड के साथ। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन हो चुका है लाइक के साथ। सो लाइक हमें पता है एग्जाम्पल होता है सिमिली का। लाइक मतलब क्या है, सिमिली है। सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फेल्ट आई, यानी कि देन आई फेल्ट इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब ये दोनों का चेंज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इन्वर्जन। द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर। देन अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। ट्रम्पेट से यहाँ पे एक इमेज बनती है, सो एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इमेजरी। बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी डी का साउंड रिपीट हो रहा है, सो अलिट्रेशन इज देयर। नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड। फॉल्स वर्ल्ड, एक्चुअली वर्ल्ड फॉल्स नहीं होता है, बट द पीपल who are with poet, they are actually untrue. So the tendency of being untrue is passed from person to world, यानी कि यहाँ पे जो figure of speech है that is transfer epithet। यहाँ पे जो figure of speech है वो है ट्रांसफर एपिथेट। दैट इज द एपिथेट फॉल्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द टेंडेंसी ऑफ पर्सन टू द वर्ल्ड, यानी कि लोगों की जो बुरी टेंडेंसी है, झूठी टेंडेंसी है, वो पर्सन से पास हो रही है वर्ल्ड के तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं अभी। थर्ड स्टैंजा में पोएट सेज मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर वेरी लाइट and now their wives do hum like bees about their work from morn till night. So in the next stanza the poet says that I have very keenly observed the real secret of happiness of poor men. गरीब जो लोग हैं उनका खुशी का राज क्या है ये मैंने बहुत नज़दीक से जाना है। So he says that much I have thought of life and seen how poor men's heart आर एवर लाइट। लाइट मियर हैप्पी, यहाँ पे लाइट का मतलब लिया है हैप्पी, यानी कि वो बहुत खुश कैसे रहते हैं, उनका हार्ट जो है इतना खुश कैसा, मीन्स पुअर मैन देमसेल्फ हाउ दे बिकम वेरी हैप्पी, वो किस तरीके से खुश रहते हैं हमेशा। एंड हाउ देयर वायुस डू हम लाइक बीज। हम मीन्स सिंगिंग करना, हम मतलब क्या होता है, सिंग करना, यानी कि गाना गुनगुनाना। तो स्पेशली हमिंग जो होता है उसमें वर्डिंग नहीं सुनाई देती है लेकिन ट्यून सुनाई देती है ना। जब भी हमें गाना नहीं पता होता है तो हम उस तरीके से हमिंग करते हैं, लिप्स को क्लोजली टाइट करके फिर हम गाना गाते हैं, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज, यानी कि द पोएट सेज दैट पुअर मैन आर वेरी हैप्पी एंड देयर वाइव्स ऑलवेज सिंग देयर हैप्पीनेस और अबाउट देयर मैन। तो उनके बारे में हमेशा वो उनकी खुशी के बारे में हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, बातें करते हैं। हियर द पोएट हैज़ कंपेयर वाइव्स मीन्स उनकी बीबी जो है उनको बीज के साथ कंपेयर किया गया है। अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सो द होल डे द पुअर मेन्स वाइव्स सिंग्स एंड टॉक अबाउट their happiness and their work, etc., etc. So here the poet told about the secret of poor man's joy or happiness. Here much have I thought, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस चेंज किया गया है। सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इन्वर्जन। सो मच आई हैव मच थॉट ऑफ लाइफ, इस तरीके से सेंटेंस होना चाहिए था। हाउ पुअर मैन्स हार्ट आर एवर लाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज नो स्पेसिफिक फिगर ऑफ स्पीच। देन एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज, लाइक यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो लाइक से हमें पता है एक फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज सिमिली। सो सिमिली में क्या है कि द वाइव्स ऑफ पुअर मैन आर कंपेयर्ड विथ बीज। बीज के साथ, बीज यानी कि मधुमक्खियाँ जो होती है
हमेशा गुनगुनाती है ना, इस तरीके से उनका हमिंग साउंड जो होता है वो क्या है। अभी ये जो साउंड है ना, ये जो साउंड है ये क्या है, साउंड क्रिएट करता है। सो हम ये जो वर्ड है ना ये एक साउंड क्रिएट करता है, इसलिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज ऑनोमैटोपोइया। एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ऑनोमैटोपोइया। अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मतलब मॉर्निंग एंड नाइट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज एंटीथेसिस। Two opposite words are put together. Next stanza. So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, for poor men think I need not go up so much as rich men should come down. So when he compared rich people and poor people, so he came to know that poor men are happier than rich person. So finally he came to a conclusion that if we want to become happier, what we have to do? So the rich person have to go down. No need that poor person should come up. Come up means poor person should not become rich to become happy. गरीब जो लोग हैं खुश रहने के लिए उन्हें अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही ऑलरेडी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ रिच पर्सन विच वॉज नॉट फुल ऑफ जॉय। पैसा बहुत था लेकिन खुशी नहीं थी। फ्रेंड्स, एज वी नो दैट मनी इज डेफिनेटली इसेंशियल फॉर आवर लाइवलीहुड, बट it is not the ultimatum. We can get many things with the help of money, but the real joy, that is happiness, contentment, love, affection, care, we can only get by humanity. So money is not too much important if compared with humanity. अगर हम इंसानियत की बात करते हैं तो पैसों से भी ज़्यादा अहमियत होती है ह्यूमैनिटी की, फ्रेंड्स की, अफेक्शन होता है, सिंपैथी होता है, केयर होता है। ये सारी जो वैल्यूज़ होती है ये पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। वी कैन बाय एवरीथिंग विथ मनी, द मटेरियलिस्टिक थिंग्स वी कैन बाय विथ मनी। जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ये पैसों से खरीद सकते हैं हम, लेकिन जो रियल जॉय होता है, हैप्पीनेस, वो हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। सो देयर इज़ अ लिमिटेशन. So poet says that when I hear these poor men's laugh, means when the poet heard that the poor person are very happy, one's laugh means they become very happy, and see the rich ones coldly frown. Coldly frown means here become very sad, in full of tension. As we find जिनके पास बहुत पैसा है वो हमेशा एक टेंशन वाली लाइफ जीते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द ईडी, आपको पता होगा ईडी, है ना, तो ईडी का में भी टेंशन होगा, या फिर कोई डकैती हो सकती है, रॉबरी हो सकती है, इसका टेंशन है। पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन इसे रखने का, संभालने का टेंशन हो जाता है, तो दे कैनॉट लिव अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ। लेकिन पुअर पर्सन जो होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है, यानी कि मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं होता है, बट उनका जो दिल होता है वो बहुत रिच होता है, बहुत दूसरों से वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसीलिए पोएट का कहना है कि जो पुअर पर्सन है, आई थिंक, यानी कि पुअर पर्सन डिड नॉट गो अप। सो पुअर पर्सन को गो अप यानी कि अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। ही एडवाइसेस दैट रिच पर्सन शुड कम डाउन इफ़ दे वांट टू बिकम हैप्पी। अगर इफ़ दे वांट टू लिव अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ, हैप्पी लाइफ, रिच पर्सन शुड कम डाउन मीन्स शुड बिकम पुअर, तो गरीब होना पड़ेगा तभी एक खुशी वाला लाइफ आप जी सकते हो। इस तरीके से पोएट का यहाँ पे कहना है। अब यहाँ पे देखते हैं, व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ, नो फिगर ऑफ स्पीच इज देयर, एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन। ये दोनों लाइन अगर हम कंटिन्यूली देखते हैं दोनों मिला के, तो वी फाइंड दैट वंस लाफ यानी कि बिकम हैप्पी, कॉल्डली फ्रॉन यानी कि बिकम सैड। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दोनों मिला के, दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, अपोजिट आइडियाज दिए गए होते हैं। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप, तो यहाँ पे थिंक आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप,
तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इन्वर्जन इन दिस सेंटेंस, आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप, इस तरीके से होना चाहिए। सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, दोनों सेंटेंस अगर हम साथ में देखते हैं तो गो अप एंड कम डाउन, अप एंड डाउन, कम एंड गो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटीथेसिस। क्लियर है? एंटीथेसिस में टू अपोजिट वर्ड्स जो भी होंगे वो बताना है। इन्वर्जन में द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क होता है, एंड जो हम ये लिखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का नाम, तो उसे 1 मार्क होता है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा देखते हैं, व्हाट द पोएट सेज इन द एंड। तो यहाँ पे देखिए एक फोटो दिया था, हाउ पुअर आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे डोंट हैव, मटेरियलिस्टिक नहीं होता है लेकिन जॉय उनके पास होता है। एंड वी फाइंड दैट हाउ द rich person having lots of money but because of frustration, tension, worriness they cannot live a very happy life, तो वो एक खुशी वाला लाइफ जी नहीं सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, लास्ट स्टैंजा है। Once again the poet empathetically says that when I had money, when I was a rich person, my many friends proved all untrue. So when I was rich, I had many friends, but all my friends were untrue, not real, false friend. Now he says that he has no money. Now he has become a poor person. But what he says, my friends are real, though very few. Now he has very few friends, but they are real friends. तो फ्रेंड्स आपको पता है कि दोस्त जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट डजेंट मैटर हाउ दे रीच आर, लेकिन उनका दिल कितना अच्छा है ना, वो कितने सिंसियर है, ऑनेस्ट है, फेथफुल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ होती है, दैट मेक हिम और हर वेरी रिच पर्सन। तो पोएट का यही कहना है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास पैसा नहीं है, बट दे आर लाइक ज्वेल्स, लाइक डायमंड्स, तो वो पैसों से, गोल्ड से भी बहुत वैल्यूएबल है, बिकॉज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। सो इन द एंड द पोएट सेज दैट नाउ ही इज़ वेरी पुअर बट ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही हैज़ वेरी फ्यू फ्रेंड्स। तो वंस अगेन लास्ट वाला जो स्टैंजा है इसका जो राइमिंग पेयर है, राइमिंग स्कीम है, थोड़ा चेंज हो चुका है लास्ट वाले की। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओ एंड अनट्रू फ्यू। तो लास्ट का जो स्टैंजा है उसका स्कीम थोड़ा सा चेंज है, बाकी सभी का जो स्कीम है ABCB इस तरीके से है। लास्ट वाला जो स्टैंजा है उसका जो स्कीम है AB इस तरीके से है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम मनी जो फर्स्ट लाइन में हमने देखा था, रिपीटेशन भी है, अलिट्रेशन भी है, देन ओ यानी कि अपॉस्ट्रोफी भी है, एक्सक्लेमेशन भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, सो यहाँ पे मैनी फ्रेंड्स अलिट्रेशन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। बट नाउ आई हैव नो मनी ओ, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर एक्सक्लेमेशन भी है एंड अपॉस्ट्रोफी भी यूज़ की गई है। माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। सो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से पोएट ने उनके लाइफ में फ्रेंड्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं ये बताने की कोशिश की है। मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मनी। फ्रेंड्स कैन डू विच मनी कैन नॉट डू। तो हम सभी को पता है फ्रेंड्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। तो अब देखेंगे हम एक क्वेश्चन PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। हमें पता है क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B हमें पोएट्री सेक्शन पे आता है 14 मार्क्स का। तो ये एक पोएम है, इसके ऊपर एक्टिविटी दी गई है कुछ, एंड एक्टिविटी 10 मार्क्स के लिए होता है एंड अप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल 5 एक्टिविटी दी गई होती है, ईच एक्टिविटी हैविंग 2 मार्क्स। तो फर्स्ट वाली एक्टिविटी बहुत इजी होती है, एनीवन कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस। तो यहाँ पे दिया है पिक आउट
lines from the poem which mean the following. तो हमें उस लाइन को लिखना है जो लाइन का मतलब यहाँ पे दिया गया है. The poet could not tell the world about what he knew. तो पोएट दुनिया को नहीं बता सकते उनको क्या पता था. तो आई डेयर नॉट टू स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड, वो यहाँ पे सेंटेंस मैच होता है. पुअर मैन आर हैप्पी एंड कंटेंट विद देयर मोटिव्स लाइव्स. तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि पुअर मैन्स आर हैप्पियर, है ना, वो वाला सेंटेंस लिखना है. देन द पोएट थिंक्स दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर रिच टू बिकम पुअर. तो लास्ट वाला जो सेंटेंस था वो फॉर रिच आई थिंक शुड कम डाउन, वो वाला सेंटेंस आएगा यहाँ पे. द पोएट फाउंड दैट हिज बिग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स वर ऑल फेक. फेक यानी कि अनट्रू, कि उनके सारे दोस्त जो है वो सारे अनट्रू हैं, नॉट रियल है. तो वो सेंटेंस यहाँ पे हमें लिखना है. सेकेंड A2 में दिया है एक्सप्लेनेशन, किसी एक लाइन का हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है. सो हियर देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो. तो ये एक्सप्लेन करके बताना है कि व्हाई द पोएट हैज़ सेड दिस. सो द लाइन गिवन लाइन्स हमें एक्सप्लेन करना होती है. सो वी स्टार्ट आवर आंसर विथ लाइक द गिवन लाइन्स tells us that the poet wants so and so. इस तरीके से हमें आंसर लिखना होता है. नेक्स्ट होता है हमारा डू यू थिंक, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर है मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स. यानी कि जितने भी गलत काम है उनका जो रूट है, उनका जो कारण कहेंगे हम, वो वजह सब पैसों के वजह से है. ऐसा आपको लगता है क्या? एंड इफ़ यस वाई, इफ़ नॉट देन वाई. यानी कि दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा है. A4 find and explain the figure of speech in the following lines and how their wives do hum like bees. इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, एटलीस्ट वन फिगर ऑफ स्पीच विथ एक्सप्लेनेशन लिखना होता है. फिफ्थ एक्टिविटी होती है कंपोज 4 लाइन्स ऑफ योर ओन ऑन फ्रेंडशिप. तो फ्रेंडशिप के ऊपर कोई भी 4 लाइन आप फ्री वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, एंड अगर आपको पॉसिबल होगा तो आप किसी प्रॉपर स्कीम को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो देखिए बहुत सिंपल एक्टिविटी होती है. फॉर एग्जांपल देन नेक्स्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी अलग पोएम होती है. यहाँ पे एप्रिसिएशन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए होते हैं, एंड इन पॉइंट्स की सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स वी राइट एप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम. तो आप एप्रिसिएशन पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं. अगर ये पॉइंट आप ध्यान में रखते हैं तो यू कैन राइट वेरी वेल. तो एवरी टाइम आई सजेस्ट दैट यू शुड गो विथ लाइक दिस. तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है. तो देखो जब भी हम आंसर लिखते हैं हमारे आंसर पेपर में, सो वी अवॉइड राइटिंग क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नहीं लिखते, वी राइट ओनली द क्वेश्चन नंबर करेक्टली. क्वेश्चन नंबर करेक्टली लिखते हैं. सेकेंड, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन होने के बाद इस तरीके से पेंसिल से अगर क्लोज करते हो तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होता है. तो यहाँ पे देखिए चारों सेंटेंस एक 1 बाय 1 लिखे हैं. देन यहाँ पे एक सेंटेंस दिया था तो उसको ओन लैंग्वेज में लिखना था. सो द गिवन लाइन्स दैट पोएट फेल्ड लाइक अ चाइल्ड हु कैनॉट ब्लो अ ट्रम्पेट दैट ही होल्ड्स बिकॉज someone has died. This is because it is not appropriate to do like that. Similar, the poet cannot tell all the rich people or his friends that he has found the real joy, real happiness, that is true friends. तो ये बता नहीं सकता, इसलिए उन्होंने the poet has compared his critical condition with the child who holds a trumpet. नेक्स्ट था हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स है. तो यहाँ पे पूछा था कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स. तो हमें एक्सप्लेन करना है. इफ़ यू आर एग्री विथ इट यू कैन से येस आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, और येस ऑफ कोर्स आई थिंक दैट मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स बिकॉज वी हैव आइड मनी सिंस टाइम immoral, but the greed for obtaining more money has surely reached its culmination. In present time, crimes such as fraud, scam and theft have increased due to people's insatiable greed. So हम ये हमारा own opinion भी लिख सकते हैं कि yes, money is the root of all evils because we find that
money has become more important than relations, and money create conflict between two brothers also. Then the relations are based on one's bank balance and property. Such a tendency of materialism has spoilt the social fabric that used to be based on human bonds. So you can elaborate, you can explain in your own words. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है ना। 100% मार्क्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है A4 यानी कि पोएटिक डिवॉइस। फिगर्स ऑफ स्पीच लिखने के लिए 1 मार्क होता है, एक्सप्लेनेशन देने के लिए 1 मार्क होता है। सो यहाँ पे लाइक वर्ड आ चुका था, इसलिए यहाँ पे सिमिली है, दैट इज द वाइव्स ऑफ पुअर मैन आर इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विद बीज। सेकेंड, हम ये जो वर्ड है ये ऑनोमैटोपिया है ना, ये फिगर ऑफ स्पीच बताता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन है द वर्ड हम क्रिएट साउंड इफेक्ट, बहुत सिंपल है उसका। देन 4 वर्ड्स 4 सेंटेंसेस हमें कंपोज करने के लिए कहा जाता है। तो 4 वर्ड्स लिखते समय बिल्कुल भी ये बात याद नहीं आना चाहिए दिमाग में कि मेरा आंसर सही है नहीं है, या फिर मैं जो लिखूंगा वो सही है नहीं। तो वट एवर 4 लाइन्स यू कंपोज आर एक्सेप्टेड, तो बिल्कुल एक्सेप्ट होते हैं एंड फुल मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ गलतियाँ नहीं निकाली जाती है, क्योंकि पोएट्री लिखना यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होता है, ठीक है ना। आप जैसा सेंटेंस बनाना चाहेंगे, जैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। अगर आगे पीछे हो जाता है तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है, दैट इज़ इन्वर्जन। सो बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, गो अहेड। डेफिनेटली आप यहाँ पे 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप के ऊपर एक पोएम था, ट्रू फ्रेंडशिप इज समथिंग सो प्योर दैट यू कैन ऑलवेज बी श्योर, to all your problems there lies a cure, but never can it be based on lure। तो इस तरीके से आप अपना ओन पोएट्री कंपोज कर सकते हैं। तो ये था 10 मार्क्स की एक्टिविटी। उसके बाद में होता है हमारा एप्रिसिएशन। सो एप्रिसिएशन पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एक पैराग्राफ भी बनता है, एंड हमें याद आता है कि व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू राइट। सो अबाउट पोएम एंड पोएट, दिस पोएम Money is written by William H. Davis, who is a Welsh poet, है ना। Welsh होना चाहिए था, well हो चुका है। And writer has written, तो written का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है ना, WRITTEN होना चाहिए था। Welsh and written the poem Money after spending a significant, जो स्टार्टिंग में दिया था है ना, after spending a significant part of his life as a tramp and hobo in UK and United Kingdom, then he published his first volume, that is The Sound of Destroyer। ये उनका कलेक्शन है, The Sound of Destroyer and the Other Poems, है ना, ये उनका कलेक्शन है। So the poem Money tells us very important lesson that when we do not have money or have lots of money, we realize how important money is. At the end, the poet says that now he does not have money, he has 2 friends, though they are very few। Then theme लिखना होती है। The major theme of the poem is satisfaction and happiness। यहाँ पे satisfaction, happiness, true friends, इसके बारे में पोएट ने कहा है। The poet compares rich people and poor people and comes to conclusion that poor people are happier than rich people। तो rich का people यहाँ पे देखो होमोफोन्स के वजह से इस तरीके से rich आ चुका है। Rich people, according the poet, poor man's heart is light। At the end, the poet is poor but he has prestigious gems like his friends। नेक्स्ट होता है पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर क्या क्या है। सो द पोएम हैज़ अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, दैट इज ABCB, है ना। द पोएम हैज़ अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, दैट इज ABCB। देयर आर 5 quatrains having 4 lines each। The language of the poem is very easy to understand। The poem is embellished using rhyme scheme and poetic devices such as, तो जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ की गई है, मनी से याद रखना कि मनी पोएम में रिपीटेशन भी है
अलिट्रेशन भी है, अपोस्ट्रोफी भी है, एंड फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा है एक्सक्लेमेशन भी है. सो यू कैन राइट 4 और 5 फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखना होते हैं. नेक्स्ट होता है उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट, दैट इज इंस्पिरेशनल मैसेज और वैल्यूज. सो क्या मैसेज हमें मिलता है? द पोएम हैज़ अ वेरी क्लियर मैसेज दैट हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंड विथ मनी. इट इज़ द ट्रू फ्रेंड्स दैट गिव अस हैप्पीनेस. द पोएम सिंस द इम्पॉर्टेंस, सिंग होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग करेक्शन है, सिंग्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ टू फ्रेंड्स इन वंस लाइफ. तो यहाँ पे पोएट ने ट्रू फ्रेंड्स के बारे में ही कहा गया है. देन लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारा ओपिनियन लिखना होता है, व्हाट यू थिंक. सो आई थिंक आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, तो पर्सनल प्रोनाउन आई का जो है ना, पर्सनल प्रोनाउन आई का यहाँ पे यूज़ करना है. तो यानी कि ये बताता है कि मेरा ओपिनियन का है. सो आई एब्सोल्युटली एग्री विद द पोएट दैट मनी इज द नॉट एंड ऑफ एवरीथिंग. विदाउट मनी वी कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ with true friends though very few. So यहाँ पे हम पोएट के साथ एग्री होते हैं. एंड yes, it is the fact that money is not the ultimatum. It is what you can say, a part of living, but it is not the everything. So इस तरीके से हम हमारा appreciation लिख सकते हैं. appreciation ये open ended question है, you can make changes in it. तो फ्रेंड्स, होप आपको मनी ये पोएम के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, फिगर ऑफ स्पीच, एप्रिसिएशन सब अच्छे से समझ में आया होगा. तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.